evening, participants. I'm Dr. Mohit Nagpal. I have done DM in nephrology in 2007. Afterwards, I am practicing from corporate hospital to a private medical college, then shifted to Ganganagar, and recently we are running our own center. So today I will be informing you about infection control in dialysis unit, which is a very common day-to-day happening in our centers. So we should be very careful. That is the most important thing we can offer to our patients. So my topic will start with the infection control in dialysis unit. You will tell me. So the objective of today's meeting is to list 3 ways to prevent catheter infections in hemodialysis patients and describe how to safely carry medications, give medications to the patients, and perform hand hygiene and take care of the other potential sources of infection in our hemodialysis unit. So because if we are using the major lines of the body like central line, jugular, subclavian or femoral, if any infection happens in any of these arteries or veins, or we puncture any artery or unnecessary cross puncture while performing any procedure, it can create a lot of problems and infection to the patient. So we should try to protect the patients from getting the infections in our unit. Next, please. Next slide, Neeraj. So, first we should know that why the patients earlier one, Neeraj, before that, Neeraj. Yeah. So why the patients of dialysis are at risk of getting infection? Because they are frequent use of catheters and needles are there, and they already have a weakened immune system, so they are more prone to get infections, and because of frequent stays in hospital and surgeries, they get the cross infection. So they are very vulnerable, and we should be able to protect them. Next, please. Next slide. So, what are the kind of infections we can face in dialysis? Dialysis unit के अंदर आपके पास blood के थ्रू फैलने वाले कई सारे infections होते हैं. Blood stream से infections जो फैलते हैं, वो जैसे कोई catheter है, कोई fistula है, या graft जहाँ पर अपन इसको use करते हैं. The other type of infections we get is hepatitis B and C. They are blood-borne viral infections that can cause chronic lifelong disease involving inflammation of the liver, because that patient will be getting 2 type of problems. Already the patient is having kidney problem, और इसके साथ साथ मरीज को लीवर का भी वायरस आएगा जो बाद में उसके लीवर को खराब भी कर सकता है और उसके अंदर कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है. तो पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना हमारी प्रायोरिटी है, ताकि किसी भी स्थिति में पेशेंट हमसे इन्फेक्शन ना ले या हमारी गलती से मरीज को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट प्लीज. So we should be very much aware that the bloodstream infections are very dangerous complication of dialysis. They get the most resistant type of bacteria when they get infected. Moreover, their immunity is low. तो जो ये पेशेंट्स होते हैं डायलिसिस के, ऑलरेडी इनका इम्यूनिटी कम होता है, और अगर इनमें हम कोई भी बैक्टीरिया हमारे थ्रू या हमारे मीडियम के थ्रू इसमें इंट्रोड्यूस हो जाए, तो वो मरीज के लिए बहुत लाइफ को भी थ्रेटन कर सकता है. 4 में से 1 पेशेंट को स्टैफ ऑरियस, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, द मोस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो सकता है, तो विच फर्दर कैन कॉज एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, यानी हार्ट पे भी असर दे सकता है, हड्डियों पे भी असर दे सकता है. उसको ट्रीट करना बहुत कॉस्टली होगा. दिस इज अ रफ एस्टिमेट विच इज basically done in the US, that the cost is around $20,000. In India, it can vary from 10,000 to up to 1 lakh of rupees. So it is not very easy for anyone to afford that kind of money, particularly in dialysis. Dialysis के पेशेंट्स ऑलरेडी काफी पुअर और क्या कहना चाहिए कि पैसे से ऑलरेडी तंग हो चुके होते हैं, तो उनके लिए इसके ऊपर ऐसी कॉस्ट और खर्चा आना पेशेंट के लिए काफी मुश्किल पैदा कर सकता है. सो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कैन कॉज सेप्सिस. इफ सेप्सिस स्प्रेड, then it can be life threatening. Next, please.
नेक्स्ट स्लाइड या सो इफ वी कमिंग टू नेशनल बर्डन, अगर हम ये देखें कि हमारे हिंदुस्तान में डायलिसिस के कितने पेशेंट्स हैं, तो इसका अभी तक कोई डाटा नहीं है। एक नेशनल रजिस्ट्री फॉरम चलता है जिसपे कुछ ये नडियाड से शुरू हुआ था, लेकिन बहुत कम लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। एस्टिमेटेड जो है कि अराउंड 152 पर 10 लाख पीपल जो है वो एंड स्टेज रिनल डिजीज पे हैं, लेकिन वो इसमें से कितने पेशेंट्स डायलिसिस ले पाते हैं, ऐसा अभी तक हमारे पास कोई डाटा नहीं है। लेकिन जो रफ एस्टिमेट है कि जितने 100 में से आप इसे समझिए कि 20 to 30% लोग ही डायलिसिस की फैसिलिटी ले पाते हैं, 70% पेशेंट्स को डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। And majority or many of them receive dialysis, hemodialysis through a central line. So central line have a very high risk of infection as comparing to the fistula or a AV graft. So we should prefer a fistula and or if possible graft being a costly of procedure. So earlier we start with central lines including femoral or jugular subclavian catheters. Next, please. So how do these infections happen? तो पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन होता कैसे? एक सोर्स है जिसके पास इन्फेक्शन है और एक होस्ट है जिस जो पकड़ सकता है। तो सोर्स तीन तरह के सोर्स हैं। एक तो कांटेक्ट है, कांटेक्ट जिसमें जर्म्स हैं, उससे बैक्टीरिया और वायरस जा सकते हैं। और होस्ट तो वो है जिसके अंदर ये इन्फेक्शन पकड़ लेता है। जैसे हमारा एक पेशेंट है, वो ऑलरेडी लो इम्यूनिटी का पेशेंट है, उसके पास कोई भी पेशेंट आए उसको बहुत जल्दी पकड़ सकता है। खास तौर पे आजकल के टाइम पे जहाँ कोविड बहुत स्प्रेड हो रहा है, एक नया पेंडेमिक हम फेस कर रहे हैं, हमें इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स और एयरबॉर्न है, कॉन्टैक्ट से भी आता है। ये तीनों फैक्टर्स कोविड के अंदर भी हैं। तो हमें कोविड के लिए भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कोविड कहीं एक पेशेंट कहीं कोविड का हमारे सेटअप में आ जाता है तो वो बाकी सब इंक्लूडिंग द technicians and doctors who are taking care of that patient can get infected with the COVID. Others are any simple viral or bacterial infections, and through catheters we can introduce into the bloodstream. Next, please. So, what we can do during dialysis, infection can spread by the transmission. So what we should do is we should have a safety profile. We should use hand hygiene. We should be like properly scrubbed. The same stuff should not be used with the other patients. हर पेशेंट के पास जो सामान यूज होता है, वो जो वायल यूज होती है या जो सिरिंजेस यूज होती है, वो दूसरे पेशेंट के बेड पे नहीं ले जाना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सो जो स्प्रेड है जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसके अंदर सिंपल वायरस से लेकर अब हमारा जो कोविड-19 है, दे स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट एंड एयरबोर्न ट्रांसमिशन। नेक्स्ट प्लीज। So standard precautions like hand hygiene, as you can see in the photographs, staff totally scrubbed and neat and clean. The जो ग्लव्स हम एक पेशेंट पे यूज करते हैं वो दूसरे पेशेंट पे यूज नहीं होने चाहिए क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन वहां से बहुत फैलता है। बट तो अच्छे से स्क्रब होना चाहिए, हैंड क्लीन एंड नीट क्लीन होने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। This is very important slide. Perform hand hygiene. When hands are visibly soiled with blood or other body fluids, the best thing is wash with soap and water. If you don't have, use alcohol-based hand rub. Hand hygiene is the most important way for you to prevent the spread of infection. मतलब कि हाथ हम अच्छे से क्लीन करें, हैंड हाइजीन करें, वो कोविड में भी हेल्प करता है, हेपेटाइटिस बी सी में भी बहुत हेल्प करता है। तो अगर हम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे ये लेकर नहीं जा रहे हैं, दूसरा उसको हम हमारे पूरा हैंड हाइजीन को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा यूनिट कंप्लीटली सेफ रहेगा और आगे हम वो इन्फेक्शंस नहीं स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो
as you all are aware nowadays, because of so much awareness in social media, that wear gloves, prefer if we can wear PPE for all patient care, vascular access safety, cleaning before using, proper use of betadine, sanitizing completely the patient will definitely help the patient in preventing the infection. So the medication vials, which we should be used very clean and safely, clean and disinfect the dialysis station. That is very important. We should not be in a hurry of taking the patient one on another on the same station. So the in between, you should take time or 15 to 20 minutes to disinfect and clean the dialysis station itself. Next slide. Here is next slide. Yes, sir. आपको ये ध्यान रखना है जहाँ पर हम लोग जैसे बहुत सारे सेंटर्स, जैसे हमारे सेंटर में भी हम रीयूज करते हैं, तो रीयूज बहुत बड़ा कारण है सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो जहाँ पर भी आप रीयूज कर रहे हैं, बहुत एक तो इंडिविजुअली होना चाहिए, एक सारे इकट्ठे डायलिसिस इकट्ठे वॉश नहीं होने चाहिए, और बहुत सेपरेटली उनका सेक्शंस बने हुए होने चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और प्रेफर आज के टाइम पे ये प्रेफरेबल है, अगर सिंगल यूज कोई करता है तो इट शुड बी प्रेफर्ड। सिंगल यूज से आपके क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो एरियाज, जितने भी एरियाज हैं, चाहे मेडिकेशन सप्लाई एरियाज हैं, सप्लाईज इक्विपमेंट को प्रॉपरली क्लीन करना है। जो ट्रीटमेंट स्टेशन से ध्यान रखिए, वो कंटेमिनेटेड एरियाज हैं तो वो स्टेशंस कंप्लीटली, सरफेस को भी बहुत अच्छे से क्लीन करना है, डायलिसिस मशीनों के और बेड्स को। ये सारे जो हैं ये कंटेमिनेटेड एरियाज हैं जहां से क्रॉस इन्फेक्शन फैल सकता है, तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, और मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि सेम मेडिकेशन कार्ट, जो जिस मेडिकेशन कार्ट और ट्रे, सेम मेडिकेशन कार्ट और ट्रे को अलग सभी पेशेंट्स पे आगे नहीं लेके जाना, सबकी अलग अलग होना चाहिए। मेडिकेशन वायल, सिरिंजेस और जैसे अल्कोहल स्क्रब्स हैं, वो पॉकेट में कैरी नहीं करना है, इट शुड बी इन द ट्रे। एंड आपको इंश्योर करना है कि पूरा जो पेशेंट का स्टेशन है या मशीन है या बेड्स हैं, दे आर क्लीन एंड हाइजीन। रोज रात को, शाम को आप जाने से पहले उसको क्लीन एंड हाइजीन करिए, सुबह आके फिर से क्लीन करिए। इन बिटवीन द सेशंस, एक पेशेंट पूरा करने के बाद दूसरे पेशेंट के बीच में आपको डिसइंफेक्ट करना है मशीन को। इसके बारे में कोई भी आपके हॉट डिसइंफेक्शन है, रिंसिंग है, ये सारी चीजें आपने करनी है। इसके बारे में कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज क्रॉस इन्फेक्शन विल हैपन टू अदर पेशेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग एन इन्फेक्शन। तो क्लीनिंग कैसे करनी है? डिटर्जेंट, वाटर एंड फ्रिक्शन। जितना भी ब्लड है, ब्लड क्लॉट है, बॉडी फ्लूइड्स है, उनको अच्छे से साफ करना है। और जितने भी डिसइंफेक्शन वाले करने से सारे जर्म्स हैं वो किल हो जाएंगे। और ग्लव्स हमेशा पहनने हैं, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ग्लव्स चेंज करके जाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आपको क्या ध्यान रखना है, जो डायलिसिस मशीन या स्टेशन है उनको डिसइंफेक्शन में जो बारी बारी बता रहा हूँ इसमें कमी नहीं होए, चाहे सरफेस है, चाहे वो हॉट डिसइंफेक्शन है, चेयर्स हैं, ट्रेज हैं, काउंटर टॉप्स हैं, मशीन्स हैं। हर पेशेंट के बाद में उसको अपने को क्लीन करना चाहिए जितना हो सके। कोई इमरजेंसी है तो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज यू शुड बी you should take time to clean the machines and all beds, trays, everything. Next slide please, Neeraj. So another important thing is vaccination. सभी डायलिसिस स्टाफ, पेशेंट्स हेपेटाइटिस बी से कम इन अपने को वैक्सीनेशन कंप्लीट होने चाहिए।
अपने जो पेशेंट्स हैं उनका अपने को मालूम है 01 to 6 है डबल डोज 40 माइक्रोग्राम्स। जो स्टाफ है उनका 016 20 माइक्रोग्राम्स। ये आपको कंप्लीट वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा होना चाहिए सबका, ताकि एटलीस्ट हम हेपेटाइटिस बी से बच रहे हैं, आप और पेशेंट दोनों। सी का अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं है, उसका हमारे पास अभी तक इस तरह का कोई प्रिवेंशन भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरी जो चीजें और वैक्सीनेशन आप कर सकते हैं, एक तो इन्फ्लुएंजा की। वो इन्फ्लुएंजा क्या एक तरह का फ्लू है जो अपने कॉफ से, स्नीजिंग से और बोलने से एक दूसरे में फैलता है। इट इज सेम एज कोविड। कोविड भी ऐसे ही फैलता है, इन्फ्लुएंजा का ही टाइप है कोविड, उसी के ग्रुप का वायरस है। तो ये सब एक ही वे से फैलते हैं। अभी तक कोविड की वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन हमारे पास इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है जो साल में हर साल एक बार लगानी पड़ती है। हर साल लगती है एक बार जो किया, क्योंकि वायरस म्यूटेट होता रहता है तो अपने को नई वैक्सीन हर साल लगानी पड़ती है। हेपेटाइटिस बी बहुत ही खतरनाक है। अगर एक्यूट है कईयों में तो ये विद इन 6 मंथ्स रिजॉल्व होकर चला जाता है, लेकिन कुछ लोगों में जिसमें क्रॉनिक रह जाता है उसके अंदर ये लीवर को खत्म कर सकता है, कैंसर भी कर सकता है। तो इसका वैक्सीन भी है। हम इस वैक्सीन से वैक्सीन सबको देके आगे पेशेंट्स और स्टाफ सबको बचना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि कई जो वैक्सीनेशन है वो डायलिसिस पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस बी की जो एफिशिएंसी है वो 50 to 70% है। मतलब 40-50% ऐसे पेशेंट्स रह जाते हैं जो वैक्सीन देने के बावजूद भी वैक्सीन उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनती है। तो उसके अंदर हमें उसका एंटीबॉडी लेवल्स देख के बूस्टर डोजेस देनी होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जिसको आपने वैक्सीन लगा भी दिया तो ये कोई गारंटी नहीं है कि उसको वैक्सीनेशन पूरा हो सकता है, वो प्रोटेक्ट हो चुका है हेपेटाइटिस बी से। उसके एंटीबॉडी चेक करें, अगर वो लेवल्स 10 से ज़्यादा हैं तो वो इम्यून है, अदरवाइज उसको बूस्टर्स एवरी ईयर देना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So that's what I tell you that flu vaccine each year and hepatitis B vaccine, which we know the schedule. Next, uh, next slide, please. So all patients should be vaccinated for the hepatitis B, influenza, pneumococcal, and every 3 to 6 months routine screening for B and C viruses. Next slide, please. अभी जो मैंने आपको बताया ये वही है कि आपने हेपेटाइटिस बी के ध्यान रखना है। और अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उसके लिए हमें सेपरेट रूम्स और वो बनाने होते हैं, पूरा उसका सेपरेट सिस्टम होना चाहिए। वो स्टाफ भी प्रॉपर। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर स्टाफ कोई पॉजिटिव है तो वो हेपेटाइटिस बी का पेशेंट्स या दूसरे पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो और इम्पोर्टेंट बात थी, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना। हेमोडायलिसिस पेशेंट्स हु माइट बी एट इंक्रीज रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग जर्म्स टू अदर्स इंक्लूड दोज विद इन्फेक्टेड स्किन। कोई किसी के स्किन पे इन्फेक्शन हो या किसी के डायरिया या कोई और गट ट्रबल्स हो, वो दूसरे पेशेंट्स को प्रॉब्लम दे सकता है। तो ट्राई करिए कि गाउन, ग्लव्स सब अच्छे से पहनाओ और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे वो चीजें कैरी नहीं हो। अलग अलग गाउन पहन के अलग अलग अपना हाइजीन मेंटेन करते हुए एक पेशेंट से दूसरा पेशेंट अटेंड करना चाहिए। और जिस पेशेंट को थोड़ी भी इलनेस है, जैसे किसी को खांसी जुकाम है, तो दूसरे मरीज से उसको कम 6 फीट दूरी पर रखना चाहिए ताकि वो दूसरे पेशेंट को ना इन्फेक्शन दे दे। सेम विद कोविड। कोविड का भी यही है। देखिए कोविड का कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट या परफेक्ट वैक्सीन नहीं अभी तक बना है। तो लेकिन अभी जैसे हमारे यहाँ पर हमें टेस्ट करना अलाउड नहीं है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट में भेजना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन ही हमारा इलाज है। सभी को मास्क, ग्लव्स, सब प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करते हुए और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट प्लीज। जो पेशेंट को नया आता है उसको एजुकेट करिए और उसके टेस्ट करवाइए। आपको उसके सारे वाइल मार्कर्स भी चेक करते रहना चाहिए और उसको वैक्सीनेशन बी, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकस की देनी चाहिए। और
कैथेटर फर्स्ट तो ठीक है, कैथेटर से हम डायलिसिस शुरू करते हैं, लेकिन अर्लीस्ट पॉसिबल उस पेशेंट को फिशुला या एवी ग्राफ्ट के लिए मोटिवेट या वो बनवाना चाहिए। इससे आपके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इन द यूनिट विल बी वेरी लेस। हम कई बार नोट करते हैं सेंट्रल लाइन से फीवर आ रहा है, राइगर्स आ रहे हैं, समटाइम्स वाटर क्वालिटी, समटाइम्स इफ वी आर गिविंग एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, समटाइम्स पेशेंट उसको इतना क्लीन नहीं रख पाता, वेट कर लेता है, तो भी इस पेशेंट को सेंट्रल लाइन से सेप्सिस होता रहता है। तो हमें उससे बचाना है एंड फिशुला एंड ग्राफ्ट के लिए अर्लीस्ट उसको मोटिवेट करना है और उसका इस चीज के लिए बनवाना ही है, ऐसा समझें आप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So what are the keys? Key is the hand hygiene, separate clean areas, practice proper handling, वही साफ सफाई खुद का भी और पेशेंट्स का भी। मोटा वही है, भी हाइजीनिक, कहीं से भी हाइजीन। हाइजीन की वैल्यू इस समय से ज्यादा हम कभी भी नहीं समझ सकते। कोविड के टाइम पर हम लोगों को इतना एजुकेट हुए हैं कि हाइजीन की बहुत वैल्यू हमें समझ में आई है कि एक सिर्फ हाइजीन मेंटेन करने से हम कितने डेडली वायरस से बच सकते हैं। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हैं, आपने भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देख रहे होंगे, और मैं अपने स्टाफ मेंबर्स को भी बताना चाहता हूँ कि हमें नहीं मालूम कि हो सकता है हमारे यूनिट से या हॉस्पिटल से कई डायलिसिस के पेशेंट्स या नॉन डायलिसिस पेशेंट्स भी जो कोविड पॉजिटिव होंगे वो निकल चुके होंगे, क्योंकि हम टेस्ट तो करा नहीं पाते सबका। लेकिन हम बच कैसे सकते हैं या बचे हुए कैसे अभी तक? जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टेंसिंग एंड मास्क एंड हैंड हाइजीन। अगर हम ये चीज छोड़ देंगे या हमारे मास्क नीचे लटक रहे हैं, गले पे आ गए हैं, नाक से नीचे जा रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी वो इन्फेक्शन पकड़ लेंगे। और आप, ऐसा नहीं है कि खाली आप नहीं, आपका आपसे आपकी फैमिली, जो फैमिली हॉस्पिटल भी है और घर भी है, तो उसमें ये क्रॉस इन्फेक्शन बहुत फैल सकता है। तो हाइजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे हम कोविड जैसे डेडली वायरस से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Here is next slide. So I will be concluding my talk here that infections that patients can get while receiving dialysis are serious but preventable. कहने का मतलब ये है कि काफी सीरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस मिलते हैं, लेकिन इनसे बचा जा सकता है। और हेल्थ केयर वर्कर्स एंड डेडिकेटेड टेक्नीशियंस, आप जैसे डेडिकेटेड टेक्नीशियंस इस चीज को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। और ये हमारी सबकी जिम्मेवारी भी है, आपकी मेरी, सभी टेक्नीशियन, सभी डॉक्टर्स की, कि हम सबको मिलके, वो दूसरा गलती कर रहा है उसको भी एजुकेट करना चाहिए। और इसको जो देखिए हमारे इंडिया में एक सिस्टम है, चलता है, वो चलता है सिस्टम नहीं होना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्टली ये है रेजीम्स और हाइजीन को फॉलो करके पेशेंट्स की लाइफ को सेव करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।